خوف خدا نہیں اس لیے ہم ظہر کی نماز ادا نہیں کرتے، ہمارے دل میں خوف خدا نہیں اس لیے ہم عصر و مغرب عشاء میں غائب ہے، ہمارے دل میں خوف خدا نہیں اس لیے ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، اپنے والدین کو ستا رہے ہیں، پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اے لوگوں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، بعد مرنے کے قبر میں کامیابی چاہتے ہو، کل قیامت کے دن آقا کی شفاعت چاہتے ہو، خوف خدا دل میں پیدا کرنا پڑے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، ارے جو اپنے رب سے ڈر کے زندگی کو گزارتا ہے، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے تو جنتیں ہیں۔ اے لوگوں، دنیا چند دنوں کی ہے، دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ آج میں آپ سے اگر پوچھوں اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ قبر میں جانے کی کوئی تیاری ہے تو آپ کہو گے مولانا کوئی تیاری نہیں۔ آج انسان دنیا کے اندر رشتے برابر یعنی رشتے قائم کر رہا ہے، کبھی کسی سے رشتہ بڑھا رہا ہے، کبھی کسی سے رشتہ بڑھا رہا ہے، کبھی پردھان سے رشتہ بڑھا رہا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جو تمہاری قبر میں کام آئے رشتہ اس سے مضبوط کرو، جو تمہاری قبر میں کام آئے رشتہ اس سے مضبوط کرو۔ تمہارا دوست تمہاری قبر میں کام نہیں آئے گا، تمہارا رشتہ دار تمہاری قبر میں کام نہیں آئے گا، تمہارا بھائی تمہاری قبر میں کام نہیں آئے گا، تمہارا پڑوسی تمہاری قبر میں کام نہیں آئے گا۔ ایک ذات ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گی، ایک ذات ہے جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی، وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، ارے وہ ذات مدینے کے آقا کی ذات ہے، آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ ارے بعد مرنے کے نبی کا عاشق جب قبر کے اندر جائے گا آقا تشریف لائیں گے، اللہ آقا کے آنے کی برکت سے اپنے بندے کی قبر میں اجالا پیدا کر دے گا، اور جب کوئی نبی کا عاشق قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، خدا کی قسم مسلمانوں میرے آقا اپنے غلام کی شفاعت کرائیں گے، اسے جنت میں داخل کرا دیں گے۔ تبھی تو اعلیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت حسن رضا نوشاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مداحِ خیر الانام بلبل باغ مدینہ حسن رضا نوشاہی تشریف لا چکے ہیں، میرے فوراً بعد آپ سماعت کریں گے۔ سنیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ کام کی باتیں آپ تک پہنچانے۔ قیامت کے دن آقا کی شفاعت سے جنت ملے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ خوف خدا دل میں پیدا کرو، جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، جب ہم اپنے رب سے ڈریں گے گناہ کے قریب تک نہیں جائیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے۔ اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، آج ہم صبح کو اچھا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں اچھا کھانا کھاتے ہیں، شام کو اچھا کھانا کھاتے ہیں، رہنے کے لیے اللہ نے بہترین مکان ہمیں عطا کیے ہیں، پہننے کے لیے ان کا لباس اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن لوگوں جب اچھا کھایا کرو تو خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور اپنے نبی کی زندگی بھی دیکھا کرو، حضرت علی کی زندگی بھی دیکھا کرو، سیدہ فاطمہ کی زندگی کو دیکھا کرو، حسنین کریمین کی زندگی کو دیکھا کرو۔ ارے وہ نبی کا گھرانہ جس گھر میں کئی دن تک کچھ نہیں بنتا تھا، فاتح پر فاتح ہوا کرتے تھے، آج انسان جتنا اچھا کھا رہا ہے اتنی ہی رب کی ناشکری کر رہا ہے، اپنے رب سے نہیں کر رہا ہے۔ اے لوگوں جلسہ تم نے کرایا ہے، اس جلسے سے کچھ پیغام آپ کو لے کے جانا ہے، انشاءاللہ جو دنیا میں بھی کام آئے، بعد مرنے کے قبر میں کام آئے۔ ہاشم القادری کا بتانے کا مقصد یہ ہے جب اچھا کھانا کھایا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جب کچھ نہ ملا کرے، جب روکھی سوکھی ملا کرے تو اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لیا کرو، اور دل میں عقیدہ کر لیا کرو، دل میں تصور کر لیا کرو یار ہم اس نبی کے عاشق ہیں، ہم اس نبی کے دیوانے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے کئی دن تک کچھ نہ کھایا، پیٹ سے پتھر باندھ کی زندگی کو گزارا۔ اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، آؤ میں اپنے نبی کی ایک بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر واقعی نبی کے عاشق ہیں آپ تڑپ جائیں گے، مچل جائیں گے۔ سرکار کے بہت مشہور صحابی ہیں جن کا نام تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں گیا تو جا کر میں نے کیا دیکھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر نفل نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ
हुरैरा फरमाते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या कोई परेशानी है, आका क्या कोई तकलीफ है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ भूख की वजह से बैठकर मैं अपनी नमाज अदा कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब मैंने इतना सुना मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, मैं बेतहाशा रोने लगा, मैं रोने लगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा रो मत, ए अबू हुरैरा रोने की वजह नहीं है, ए अबू हुरैरा जो दुनिया में सवाब की बुनियाद पर भूखा रहेगा वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब मैंने इतना सुना मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। आका ने फरमाया अबू हुरैरा रो मत, जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर सवाब की बुनियाद पर भूखा रहेगा तो वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। ऐ लोगों अच्छे से अच्छा खाते हो, कभी कभी अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे भी रह लिया करो, कभी कभी अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए भूखे भी रह लिया करो। अरे जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर भूखा प्यासा रहता है अल्लाह अपने उस बंदे से प्यार करता है, अल्लाह अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है और मेरे आका फरमाते हैं वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दुनिया में कुछ ऐसे काम कर लो, कुछ ऐसे काम कर लो जो क़यामत के दिन तुम्हारे काम आए। आज हकीकत तो ये है आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, सर पर टोपी रखने का नाम मुसलमान नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है, कुर्ता और पजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है। तुम क्या समझते हो कुर्ता पजामा पहन लिया बन गए मुसलमान, चेहरे पर दाढ़ी सजा ली बन गए मुसलमान, सर पर टोपी को रख लिया बन गए मुसलमान। लोगों अपने मुकद्दर पे नाज करो, हम मुसलमान के घर पैदा हुए, मस्जिद के इमाम या किसी बुजुर्ग या किसी नमाजी इंसान को हमारे कानों में अजान पड़ी हम मुसलमान हो गए। शायद तुम तारीख भूल गए, अरे हम अपने मुकद्दर पे नाज करो, हमको किसी मुसलमान के घर पैदा हुए, हमारे सर पर टोपियां सज गई, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां सज गई, हम नमाजें पढ़ने लगे, हम कुरान की तिलावत करने लगे, लेकिन शायद तुम ये भूल गए इस इस्लाम के दायरे में हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। इस इस्लाम की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की गई है। मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इसी दीन की खातिर, इसी इस्लाम की खातिर जिस कुरान की तिलावत करके आज हम अपने घरों में बरकतें हासिल करते हैं, बरकतें ढूंढते हैं, उसी कुरान को मेरे हुसैन ने सर कटने के बाद नेज़े पर पड़ा, नेज़े पर कुरान की तिलावत की है। आज मुसलमान अपनी हैसियत से जिंदगी गुजार रहा है, अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहा है। आज हमने शरीयत पर चलना छोड़ दिया, दिल में आता है तो नमाज पढ़ ली, दिल में आता है तो कुरान की तिलावत कर ली, दिल में आया 100, 200, 1000, 500, 2-4 रुपए रमजान के महीने में ज़कात को निकाल दिए, दिल में आया तो उम्रा करने के लिए चला गया। ऐ लोगों हमें जरूरत है तबीयत के मुताबिक नहीं शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की। तुम ये सोचते हो दुनिया में रहेंगे, ऐ लोगों दुनिया में चंद दिन रहना है, कब तक दुनिया में रह लोगे? 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 तक कोई कोई पहुंच रहा है, लेकिन 100 साल भी दुनिया में रहोगे तो 100 साल के बाद भी मरना है, कब्र में जाना है, एक लंबी मुद्दत तक कब्र में रहना है। एक अल्लाह की बंदी है जिनका नाम तारीख में हजरत राबिया बसरी आता है, अल्लाह अकबर, वो बड़ी नेकोकार की तकवेदार की परहेजगार थी। आज मेरी माँ और बहनों का हाल देखे, ईशा की नमाज से दूर सीरियल में लगी है, कहती है हिंदुस्तानी सीरियल है, पाकिस्तानी सीरियल है। हाशिमुल कादरी मुरादाबादी के बताने का मकसद सुनो, हजरत राबिया बसरी अल्लाह अकबर मुसलमानों हमेशा अक्सर रोजा रखा करती थी और दिन में कुरान की तिलावत किया करती थी, और जब रात को अल्लाह की तिलावत, जब रात को अल्लाह की इबादत करती, कुरान की तिलावत करती थी। अल्लाह अल्लाह हजरत राबिया बसरी को जब रात में अल्लाह की इबादत करते करते नींद का गलबा आता, नींद का गलबा, तो सोती नहीं थी, बिस्तर नहीं पकड़ती थी। आज का नौजवान मूवी देखते देखते सो जाता है, कानों में एयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते सो जाता है। ऐ लोगों ये गाने सुनना क़यामत में काम नहीं आएगा, मूवी देखना क़यामत में काम नहीं आएगा। तो
4-4 घंटे दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना क़यामत में काम नहीं आएगा। अगर क़यामत में काम आने वाली कोई चीज है तो वो नेक अमाल है, नबी की मोहब्बत है। हजरत राबिया बसरी फरमाती है, जब मैं अल्लाह की इबादत रात में करती थी और जब मुझे नींद का गलबा आता था, खौफ खुदा देख के खौफ खुदा हजरत राबिया बसरी का, तो कहती है मैं बिस्तर पे नहीं जाती थी बल्कि घर के आंगन में टहलने लगती थी और खुद से कहती थी ऐ राबिया, और ऐ राबिया नींद को न देख बल्कि उस बिस्तर को देख, उस जगह को देख जहां एक लंबी मुद्दत तक क़यामत तक सोना है। हजरत राबिया बसरी अल्लाह की इतनी इबादत किया करती थी, रातों दिन अल्लाह की इबादत किया करती थी। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, आज मुसलमान अपनी जानों पर जुल्म कर रहा है, इंसान तरह तरह की खुराफात में है, उसके दिल में खौफ खुदा नहीं, आज वो अपने रब से नहीं डर रहा है। ऐ लोगों, दुनिया में तरक्की चाहते हो, बाद मरने के कब्र का सुकून चाहते हो, कल क़यामत के दिन आका की शफाअत चाहते हो, अपने रब के फरमान पे अमल करो, अपने रब से डरना शुरू कर दो। आज हमने अपनी जिंदगी का दुनिया में जो आने का मकसद है उसको भुला दिया। सुनो, मुसलमान किसे कहते हैं? सच्चा आशिक जो होता है नबी का, वो न अपनी जान की फिक्र करता है, न अपने माल की फिक्र करता है, न अपनी औलाद की फिक्र करता है, बल्कि सच्चा आशिक नबी का नबी की मोहब्बत में अपनी जान को भी कुर्बान कर देता है, अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देता है, अपने माल को भी कुर्बान कर देता है। आपने नाम सुना होगा यार ज़ार, अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का, हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी से कितनी मोहब्बत थी। उलमा इकराम की दुआएं चाहूंगा, मौलाना वारिस साहब किबला दुआएं चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जरा सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी से कितनी मोहब्बत थी, कितना इश्क था, कितना प्यार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दिल की तमन्ना थी, आका हमेशा आपके चेहरे की ज़ियारत करता रहूं, दिल की तमन्ना थी, आका अपनी सारी दौलत आप पर कुर्बान कर दूं, दिल की तमन्ना थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आका हमेशा आपके कदमों में रहूं। आज भी मदीना जाकर देखे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के कदमों में मौजूद है। ऐसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी से की, दुनिया ऐसी मोहब्बत पेश नहीं कर सकती, दुनिया कासी है ऐसी मोहब्बत पेश कर दो। जानते हो कैसी मोहब्बत पेश की? हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी से कितनी मोहब्बत किया करते थे, अब जरा दिल से सुनने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है, जब मेरे आका ने दीन की तबलीग की और हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हो गए, जवानों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा तो उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। बच्चों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, और औरतों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा उसको हजरत खदीजतुल कुबरा कहते हैं। मेरे आका ने जब दीन की तबलीग करना शुरू किया, कुछ मुसलमान होने लगे, अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, अभी अपना ईमान लाना, लोगों से मत बताना, छुपाए रखना, छुपाए रखना। इसलिए अगर तुमने अपना ईमान लाना, अपने ईमान लाने का ऐलान कर दिया तो कुफ्फार मुशरिकीन आपको तकलीफें देंगे, आपको परेशान करेंगे। अल्लाह अकबर, मुसलमानों में बताने लगा हूँ, नबी का जो सच्चा आशिक होता है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह के फजलो करम से जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक दिन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब इस्लाम का चर्चा अलल ऐलान करना चाहिए, अब इस्लाम की दावत खुल्लम खुल्ला करनी चाहिए। आका ने मना कर दिया। यार ज़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बार बार इसरार किया, आका ने कबूल कर दिया। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना सुना, आका ने इजाजत दे दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त जितने भी मुसलमान हुए थे सबको लेकर मस्जिद हराम में पहुंचे। कहा? मक्का शरीफ के अंदर मस्जिद हराम में पहुंचे। तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है, इस्लाम का सबसे पहला खुतबा अगर किसी को देने का शर्फ हासिल हुआ तो उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमा इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम का सबसे पहला खुतबा अगर किसी ने दिया तो उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद हराम में इस्लाम का पहला खुतबा दे रहे हैं।
तारीख के अंदर आता उसी रोज मेरे आका के चचा हजरत अमीर हमजा भी ईमान लेकर आए। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम का सबसे पहला खुतबा दे रहे हैं। कहा? मस्जिद हराम में। मस्जिद हराम में इस्लाम का पहला खुतबा दे रहे हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन को जब खबर हुई तो कुफ्फार और मुशरिकीन मस्जिद हराम में आई, मुसलमानों पर टूट पड़े, मुसलमानों पर आकर हमला कर दिया। लोगों, तुम मुसलमान होना आसान समझते हो, हमारे लिए मुसलमान होना आसान है, लेकिन इसी इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां पेश की है। तारीख सुना करे, तारीख पढ़ा करे, जलसों में आया करे। जलसों से फायदा क्या होता है मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को लहूलुहान कर दिया, आप जख्मों से चूर चूर हो गए। तारीख में आता है इस वाक़ये के बाद ऐसा नहीं लगता था किसी को कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा रह सकते हैं। हर किसी को यही लगता था आपके जख्मों को देखने के बाद, आपके जिस्म को देखने के बाद कि इस हादसे में अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो जाएगा। उसी दौरान जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के कबीले के लोगों को मालूम हुआ, मस्जिद हराम में आए। आने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा तो आपके कबीले के लोगों ने कहा था अगर अबू बकर का इस हादसे में इंतकाल हो गया तो हम इसका बदला लेंगे और बदले में कत्ल के बदले कत्ल करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए थे। अल्लाह अकबर, आपके कबीले वाले घर ले आए। शाम तक हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश रहे। शाम तक मुसलमानों जरा सुनो, जो आज नबी का दिल दुखा रहे हैं, नमाजों से दूर हैं, गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक शाम तक बेहोश रहे। लेकिन जैसे ही आपको शाम को होश आया, आपकी जबान खुली, आपके लब खुले। हजरत अबू बकर सिद्दीक जख्मों से चूर चूर हैं, लहूलुहान है। आपकी जैसे ही जबान खुली, जबान खुलने के बाद आपने अपने बाप को ना पुकारा, अपनी माँ को ना पुकारा, अपने कबीले वालों को ना पुकारा, अपने रिश्तेदारों को ना पुकारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक शाम तक बेहोश रहे। शाम को जबान खुली, लबों ने हरकत की तो सबसे पहले जबान पर नबी का नाम आया और कहा मेरे आका कहा है, मेरे आका खैरियत से तो है, मेरे आका को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। आपके कबीले के लोगों ने अल्लाह अल्लाह इतना सुना, आपको बुरा भला कहने लगे और कहा ऐ अबू बकर तुम्हें क्या हो गया जिनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है? तुम अपनी उन्हीं को याद कर रहे हो, तुम अपनी उन्हीं को पुकार रहे हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया था ऐ लोगों, मैं उन्हें क्यों ना पुकारूं? मेरे खून के एक एक कतले में नबी की मोहब्बत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे का जवाब दे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। या रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा है लोगों, मैं उनको क्यों ना पुकारूं, उनको क्यों याद ना करूं? मेरे खून के एक एक कतरे में नबी की मोहब्बत मौजूद है। ऐ लोगों, नबी का सच्चा आशिक, सच्चा वफादार वही होता है जिससे अपनी फिक्र ना हो, अपने जख्मों की फिक्र ना हो, खाने की फिक्र ना हो, पीने की फिक्र ना हो। अगर फिक्र हो तो मदीने वाले आका की फिक्र हो, अगर फिक्र हो तो नबी के नामूस की फिक्र हो। अल्लाह अल्लाह, उसी कशमकश के आलम में आपकी वालिदा कुछ खाने का सामान लेकर आई, कुछ पीने का सामान लेकर आई। कहा बेटा कुछ खा लो, जख्मों से चूर चूर हो। पूरा दिन बेहोश हो गया आपको, अल्लाह अकबर, बेहोशी के आलम में पूरा दिन हो गया। तो आपकी वालिदा ने जब इतना कहा तो जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? जानते हो क्या कहा था? कहा मेरी अम्मी जान, पहले मुझे नबी का पता बताओ, पहले ये बताओ मेरे आका कहाँ है, मेरे आका खैरियत से तो है, मेरे आका को कोई तकलीफ तो ना पहुंची। अल्लाह अल्लाह, आपकी वालिदा ने कहा बेटा हकीकत तो ये है, मुझे तुम्हारे नबी के बारे में कुछ खबर नहीं, वो कहाँ है, किस हाल में है। तो जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था मेरी अम्मी जाओ, अगर तुम्हें मालूम नहीं तो हजरत उमर फारूक आजम की, हजरत उमर फारूक आजम की बहन हजरत उम्मे जमील के घर जाओ और जाकर उनसे मालूम करो नबी कहाँ है, उन्हें जरूर मालूम होगा। बेटे की मोहब्बत में हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा हजरत उमर फारूक आजम की बहन हजरत उम्मे जमील के घर पहुंची और जाकर कहा तुम्हारे नबी कहाँ है। उस वक्त हजरत उम्मे जमील ईमान ले आई थी, लेकिन अभी आपने अपना ईमान लाना छुपाए रखा था, जाहिर न किया था। रिवायत मैंने ये पढ़ी है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, तारीख में
آتا ہے حضرت ام جمیل نے نبی کی کوئی خبر نہ دی, کوئی واضح جواب نہ دیا, بات کو ٹال دیا اور کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں. ابو بکر صدیق کو خود دیکھنے کے لیے اللہ اللہ ام جمیل حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر آئی اور جیسے ہی زخموں سے چور چور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا, حضرت ام جمیل بے تحاشا رونے لگی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ام جمیل مجھے میرے آقا کی خبر دو, میرے آقا کہاں ہے, میرے آقا خیریت سے تو ہے, میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی. تو حضرت ام جمیل نے کہا تھا اے ابو بکر آقا خیریت سے ہے اور حضرت ارقم کے گھر سے ہی سلامت ہے, آرام فرما ہے. اے سن لو نبی کے عاشق ہو, عشق رسول کیا ہوتا ہے, رسول کے جانا جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے وہ کیا اعلان کرتا ہے. جب ام جمیل نے اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سنا اور سن کر کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا, کچھ نہیں پیوں گا جب تک کہ اپنے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے نبی کی زیارت نہیں کر لوں گا, اپنے آقا کو نہیں دیکھ لوں گا. اللہ اللہ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی, آپ کی والدہ کو فکر تھی بیٹا زخموں سے چور چور ہے, کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا, پینے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. اللہ اللہ ادھر لوگوں کو آنا جانا برابر حضرت ارقم کے گھر موجود, اللہ اکبر مسلمانوں, وہاں موجود تھا جہاں حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے. تاریخ میں آتا ہے لوگوں کا آنا جانا کم ہوا تو تاریخ کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ارقم کے گھر لے گئی اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور نبی سے لپٹ کر رونے لگے, ادھر میرے آقا بھی ابو بکر صدیق سے لپٹ گئے. اے لوگوں یہ کون نبی ہے, ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی کے صدقے اللہ نے آسمان کو بنایا, جس نبی کے صدقے اللہ نے زمین کو بنایا. ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے پیٹ سے پتھر باندھ کے زندگی کو گزارا. ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے, انگلی کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. ارے یہ وہی نبی ہے جب نبی دنیا میں آئے تھے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا تھا اور سب سے پہلے اپنی گناہگار امت کو یاد فرما کے کہا تھا رب اپنی امتی, اے خدا میری امت کی بخشش فرما, میری امت کو میرے حوالے فرما, میری امت کو بخش دے. اے لوگوں یہ وہی نبی ہے جب ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا, صحابہ نے آقا کو قبر میں رکھا تھا تو آقا کے لب ہل رہے تھے. اے لوگوں قبر میں میرے آقا نے سیدہ فاطمہ کو یاد نہ کیا, حضرت امام حسن کو یاد نہ کیا, امام حسین کو یاد نہ کیا, ابو بکر صدیق کو یاد نہ کیا, عمر فاروق اعظم کو یاد نہ کیا, عثمان غنی کو یاد نہ کیا, علی شیر خدا کو یاد نہ کیا. اے لوگوں ہم اس نبی کے عاشق ہیں, یہ وہ نبی ہے جس نبی نے قبر کے اندر بھی اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا اور کہا رب حب لی امتی, اے خدا میری امت کو بخش دو. سبحان اللہ. لوگوں مقدر پہ ناز کرو, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, کتنے مقدر والے ہیں, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی دنیا میں آئے اپنی گناہگار امت کو یاد فرمائے. کبھی نبی اپنی گناہگار امت کو اپنی قبر میں یاد فرما رہے ہیں, لیکن آج نبی کا غلام نبی کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے. اے لوگوں ہم نماز نہیں پڑھیں گے, تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی. قرآن نہیں پڑھیں گے, تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی. مال کی زکات نہیں نکالو گے, تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی. زندگی میں چار چاند لگانا چاہتے ہو, زندگی میں کامیابی چاہتے ہو, زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو, باپ مرتے کے قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو نمازیں پڑھ کے زندگی گزارو, قرآن کی تلاوت کر کے زندگی کو گزارو. اس لیے یہ وہ نبی ہیں خدا کی قسم جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا سل پر کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے. حضرات یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پتوں پر بھی برساتے برسانے والے. حضرات یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا.
नबी हमारा नबी देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, इसलिए नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा इश्क करो, कुरान की तिलावत कर करके जिंदगी को गुजारो। आज देखा जा रहा है घरों में कुरान तो है लेकिन मुसलमान कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, कुरान से दूर है। कुरान की तिलावत करने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। ऐ लोगों, जो कुरान दुनिया में पढ़ता है बाद मरने के अपनी कब्र में कुरान पढ़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को उठाकर देखोगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अक्सर कुरान की तिलावत किया करते थे, उमर फारूक आजम कुरान पढ़ते थे, उस्मान गनी कुरान पढ़ते थे, हजरत अली शेर खुदा कुरान पढ़ते थे। और करीब आके पता चलेगा मेरे रोज बगदाद शरीफ की सरजमीन पे आराम फरमा है, उन्होंने हमेशा कुरान की तिलावत की। आप क्या समझते हो कुरान की तिलावत से दूर रह के हमें कामयाबी मिल जाएगी, तरक्की मिल जाएगी? कभी कुरान को छोड़कर तरक्की नहीं मिल सकती, नमाजों को छोड़कर कभी तरक्की नहीं मिल सकती। अगर तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो तो नमाजों के करीब हो जाओ, कुरान के करीब हो जाओ। आखिरी बात बता के अपनी बात को खत्म करता हूँ। कुरान क्या है? अरे कुरान के अंदर एक सूरत है, जानते हो सूरत का नाम क्या? सूरह इखलास। आप जलसे में आए हो, पैगाम ले जाओ ताकि सारी जिंदगी अमल करो, दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। सूरह इखलास देखने में तो बहुत छोटी सूरत है लेकिन इसका मकाम बहुत बड़ा है। अल्लाह के रसूल की हदीस है मिशकात शरीफ की, अरे मेरे नबी फरमाते हैं जिसने 10 पारों की तिलावत की, जिसने एक मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत की, अल्लाह उसको 10 बारों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते जिसने 2 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत की, अल्लाह उसको 20 बारों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते जिसने 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत की, अल्लाह उसको एक कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। आज हमने कुरान को आसान समझ रखा है, मुसलमानों ये वही कुरान है। अरे इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसको सूरह इखलास कहा जाता है। खुदा की कसम जो 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करता है, अल्लाह उसको एक कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। हज़रात ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह मुल्क है। जो रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत करता है बाद मरने के कब्र में जाएगा, अल्लाह सूरह मुल्क की तिलावत के सदक़े उसकी कब्र को नूर से मामूर कर देगा। हज़रात ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह बाक़िया है, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया जो रोजाना सूरह बाक़िया की तिलावत करेगा, अल्लाह उसके घर से गरीबी को दूर फरमा देगा। हज़रात ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम यासीन शरीफ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो यासीन शरीफ की एक मर्तबा तिलावत करता है, अल्लाह उसको 10 कुरानों का सवाब अता फरमाता है। हज़रात ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह कहफ है जो 15वें पारे में मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मिशकात शरीफ की हदीस पाक के अंदर जो रोजाना शुरू की सूरह कहफ की 10 आयतों की तिलावत करता है वो दज्जाल के फितने से भी महफूज रहता है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया, कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। काश हम रोजाना सूरह मुल्क की शुरू की 10 आयतों को पढ़ते। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो हर जुमे को मुकम्मल सूरह कहफ पढ़ता है वो दज्जाल के फितने से महफूज रहता है, पूरा हफ्ता परेशानियों से महफूज रहता है। लोगों कुरान को पकड़ना होगा, कुरान के करीब आना होगा, कुरान से दूरी नहीं बल्कि कुरान का हासिल करना होगा। अपने मुकद्दर पे नाज करो। ये मौलाना वारिस साहब आपकी बस्ती के हैं, नकीब अहले सुन्नत मौलाना शहबाज रज़ा आपकी बस्ती के हैं, ये जिम्मेदार उलमा आपकी बस्ती से ताल्लुक रखते हैं। खुदा की कसम अगर ये आज न होते हो सकता था ये जलसा यहाँ नहीं हो रहा था, हो रहा हो। और सुनो इल्म दीन की क्या बरकत होती है अगर किसी के घर में आलिम दूर होता है, अक्सर खुराफातों से वो घर दूर रहता है। उस घर में शादी होती है तो डीजे नहीं आता, जलसा होता है, आतिशबाजी नहीं होती, जलसा होता। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कुरान
पढ़ने वाला बनाओ। इसलिए जब तुमने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया होगा तो बाद मरने के यही हाफिज कुरान तुम्हारी कब्र पर कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। हमने बड़े बड़े मालदारों को देखा है, हाथ झाड़ कर आ जाते हैं, कोई कब्र पर नहीं रुकता है, सब आकर बिरयानी पर टूट पड़ते हैं, किसी को फिक्र नहीं होती। अगर फिक्र होती है तो उसी बेटे को फिक्र होती है जिसने कुरान पढ़ा है, जो कुरान का कारी है। ऐ लोगों, अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं, तो एक को हाफिज कुरान बना दो, कारी कुरान बना दो। बात तवील हो रही, आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, सुनो, तारीख में आता है जंग तबूक का मौका है आता, अपने गुलामों के साथ जंग के मैदान में मौजूद है। मुख्तसर करके सुन ले, अल्लाह अल्लाह मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, सारी जिंदगी उस पैगाम पर अमल करना, वजीफा बना लेना, वृद्ध में ले आना, जलसे में आना भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिंदगी में जब तक जियोगे जिंदगी कामयाब रहोगे। जंग तबूक का मौका है, आका अपने गुलामों के साथ जंग के मैदान में है। अल्लाह अल्लाह क्या देखा, एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया। हवा, जी बेशक, एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया। इजाजत है आपके, आगे बढ़ो। सारे लोग हाथ उठा के बोले सुभान। माशाअल्लाह, आपको सलामत रखे। इधर वाले भी खामोशी से समाप्त कर रहे, इधर वाले मुकम्मल सपोर्ट में है। अब जरा सुने सबके लिए, अल्लाह अकबर। एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया, जमीन पर ठहर गया, जमीन पर रुक गया। नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों, सफों को सीधा कर लो, सफे बना लो, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। बेशक हक बात है। किसमें इतनी हिम्मत जो आमना के लाल की बात को टाल सके, मदीने वाले आका की बात को टाल सके, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। आका ने जब फरमाया तो तमाम के तमाम गुलामों ने, सहाबा ने सफों को सीधा कर दिया, सफों को दुरुस्त कर लिया। अल्लाह अकबर। मेरे बाद फौरन मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी तारीख बड़ी मुश्किल से मिलती है, मौलाना शहबाज साहिब किबला की मेहनतें हैं, कमेटी वालों की मेहनतें हैं, खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला मिंबर रसूल पर बिल्कुल आने वाले हैं। घबराए नहीं आप हजरात, तारीख बताती है। बात को जल्दी से मैं समेट रहा हूँ। जैसे ही जनाजा आया, आका ने फरमाया, सफों को दुरुस्त कर लो, सफों को सीधा कर लो, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ना। अल्लाह अल्लाह। तमाम के तमाम गुलामों ने नमाज सफों को दुरुस्त कर लिया, सफों को सीधा कर लिया। आका ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, सहाबा ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। जिस तरीके से नमाज जनाजा से पहले वो जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया, नमाज जनाजा के बाद वैसे ही वापस हवा में उड़ता हुआ चला गया। अब बता दूं आगे को क्या हुआ। मेरे आका ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा हवा में उड़ता हुआ चला गया। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाया, गुलामों, जानते हो किसका जनाजा था? जी हक बात है। जानते हो किसका जनाजा था? गुलामों ने अर्ज किया, आका हम नहीं जानते, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। नबी ने फरमाया, गुलामों जानना चाहते हो ये कौन था? गुलाम मचल गए, तड़प कर बोले, आका बताइए किसका जनाजा था? अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी ने इतना सुना, सुनकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ये मेरे फला आशिक का जनाजा था, ये मदीना शरीफ के अंदर था। अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई, ये बीमार हो गया। अल्लाह अल्लाह के जुमले आशिकुल कादिर मुरादाबादी की तकरीर क्या रहे हैं, अगर दिल रखते हो सीने के अंदर तो सुन के जाना। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ये मेरे फला आशिक का जनाजा है, अचानक ये मदीना शरीफ के अंदर बीमार हो गया। इसकी यानी इसकी बीमारी बढ़ गई और ये इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। इसने रब की बारगाह में दुआ किया, ऐ मौला, अगर इसी बीमारी में मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा तेरा महबूब पढ़ाए, तेरा रसूल पढ़ाए। ऐ मेरे गुलामों, उसी बीमारी में इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों जाओ मेरे इस बंदे का जनाजा लेकर जंग के मैदान में मेरे महबूब की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बेशक। फिर मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों जानते हो इसको ये मकाम कैसे मिला? जी हक बात है। जो मतलब और मकसद है तकरीर का खुलासा वो सुन के जाए, भाई कुछ तो मकाम होगा, जो उसको मकाम मिला कुछ तो वो करता होगा, उसका कुछ तो अमल होगा, कुछ वजीफा होगा। यहाँ दिल की तख्ती पर लिख लेना और सारी जिंदगी अमल करना। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, गुलामों जानते हो उसको ये मकाम कैसे मिला? कहा हम नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया, है मेरे गुलामों सुनो सुनो, इसको ये मकाम और मर्तबा इसलिए मिला, ये सारी जिंदगी रोजाना जब तक दुनिया में रहा, हयात था, जिंदा था, या तो 11 मर्तबा या 7 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करता था।
سورہ اخلاص پڑھتا تھا. لوگوں جو 11 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہو اس کا انتقال ہو جائے, فرشتے اس کو کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جائیں, نبی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور وہ قبر میں جائے تو حوران جنت اس کا استقبال کر رہی ہو. بے شک سبحان اے اللہ. لوگوں, جب سورہ اخلاص کی تلاوت کا یہ مقام ہو تو اندازہ لگاؤ پورے قرآن کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا. جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا لپٹ گئے. ذہن حاضر ہے؟ آخری جملہ جو رہ گیا تھا سنا دو, اجازت ہو بس 1-2 منٹ کی بات, اجازت ہے. جیسے ہی حضرت ارقم کے گھر حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر گئی, حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا لپٹ گئے. حضرت ابو بکر صدیق نبی سے لپٹ کر رونے لگے, نبی بھی ابو بکر صدیق سے لپٹ کر رونے لگے. جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کے سب دیکھ کر نبی کو اللہ اکبر دونوں کو دیکھ کر رونے لگے. اے لوگوں, واقعی جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے, جو نبی کا سچا دیوانہ ہوتا ہے, جو نبی سے سچا پیار کرتا ہے, وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتا, وہ اپنے مال کی فکر نہیں کرتا, اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتا. میں تو یہی کہوں گا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہو. اسلام زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.